الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی اہم ٹاپک نیا رہ گیا تھا، وہ ابھی شروع کر دیں گے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ سبق کا نام ہے کانا و اخواتھا۔ دراصل کانا یہ افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ افعال ناقصہ اس لیے کہتے ہیں اسے کہ یہ خود کے معنی کمپلیٹ نہیں کر سکتا ہے، یہ ادھورا فعل ہے، اس لیے اس کو ناقصہ کہتے ہیں۔ کانا دراصل ہم جیسا پڑھے تھے کالا، یہ اجوف فیملی سے آتا ہے، تو اوریجنلی یہ تھا کونا۔ تو تین حرفی فعل میں عین کلمے پہ حرف علت آ رہا ہے واو، تو اس کو جیسے کہ ویسے رکھ کر اگر مضارع بنائے تو کونا یکونو ہوتا ہے۔ تعلیلات جیسا آپ جانتے ہیں واو ہٹے گا، اس کی جگہ الف آئے گا اور یہ بنے گا کانا یکون۔ کانا کے معنی ہے وہ تھا، کانا کے معنی کیا ہے؟ وہ تھا، اور یکون کے معنی ہو گیا وہ ہوگا۔ کانا دراصل داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ دو جز ہوتے ہیں۔ پہلے کو کہتے ہیں مبتدا اور دوسرے جز کو کہتے ہیں خبر۔ تو کانا ایسا ایک فعل ہے جس کو خبر نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے کہا وہ تھا تو اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے، تو آپ کو بولنا پڑے گا وہ کیا تھا، یا تو کسی اسم کو ڈال کے بولنا پڑیں گے وہ ایک ٹیچر تھا، یا پھر کوئی صفت ڈال کے بولنا پڑیں گے وہ بڑا محنتی تھا، اس طرح سے بنے گا۔ تو اس کو ایک خبر درکار ہے، وہ خبر لینے کے بعد میں کانا جملہ مکمل کر سکتا ہے۔ جیسا ہم نے انگریزی جانتے ہیں، ہم نے کہا ہی واز میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے اس کا نام دیا ہے ناقص فعل۔ ناقص یعنی رخصوا، یہ ایک انکمپلیٹ ورب ہے جس کے ادھورے معنی ہیں، اور اس کے ساتھ میں اس کی بہنیں بھی ہے۔ اخوات کا مطلب ہے بہنیں، تو یہ پورا ایک گروپ ہے۔ یہ گروپ لیڈر کانا ہے، جیسا ہم نے اس کے پہلے کچھ عرصہ پہلے 2 مہینے پہلے انا سے کہتے ہیں، انا وہ اخوات تھا۔ انا کی بھی بہنیں ہوتی ہیں، انا، انا، لاکنہ، لالا۔ اسی طرح کانا کی بھی ایک فیملی ہے۔ دراصل کانا بہت اہم ہے، باقی کے بھی ہے لیکن کم ہے۔ یہ نارمل فعل کے جیسا جو کام نہیں کرے گا، یہ ماضی کے فعل کے جیسا کام کرتا ہے، لیکن یہ تھا بول کے خاموش پڑ جائے۔ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا۔ نیچے 2 جملے لکھے ہیں عربی میں، آپ ذرا غور فرمائیے۔ انا ہم پڑھے تھے، انا بھی جملے اسمیہ میں داخل ہوتا ہے، اور جملے اسمیہ میں داخل ہو کر اپنے مبتدا کو بدل کر اسم انا بناتا ہے اور اپنے اسم کو نصب دے دیتا ہے، اس لیے اس کا نام حرف توکید و نصب تھا۔ یہ اپنی خبر کو کچھ نہیں کرتا ہے۔ تو ان اللہ غفور رحیم، تو یہاں پہ اللہ کی جگہ اللہ،
अब इसके बरक्स अपोजिट काना को देखिए। काना अपने इस्म यानी मुब्तदा को कुछ नहीं करेगा, काना अपनी खबर को नस्ब करेगा। दोनों को अच्छी तरह कंपेयर किए। काना के बाद अल्लाह है, अपना इन्ना के बाद अल्लाह है, काना के बाद अल्लाहू है, यानी काना ने अपने इस्म को कुछ अमल नहीं किया, अलबत्ता काना ने अमल किया अपने खबर पर। ऊपर में गफूरन है, नीचे में गफूरन है, रहीमन है। तो इस तरह से ये दोनों भी काना और इन्ना आमिल हर्फ। इन्ना अपने मुब्तदा पर असर करके मंसूब करेगा उसे, तो काना अपनी खबर को मंसूब करेगा। कोई सवाल है तो पूछिए। अब हम इसके अंदर डीप जाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इन्ना व अखवातुहा और काना व अखवातुहा में दोनों भी इस्म काना और खबर काना बनेगा, जैसा इन्ना में बनाए थे खबरो इन्ना, अपना इस्मो इन्ना और खबरो इन्ना, उसी तरह यहां पे भी बनेगा। काना का इस्म हमेशा रफा हालत में रहेगा, काना की खबर हमेशा नस्बी हालत में रहेगी। ऊपर का जुमला अरबी में पढ़िए, जलसा। जलसा एक फेल है, हुआ इसका मुस्ततिर हो सकता है अगर सामने कोई इसमें जाहिर नहीं है तो, अलबत्ता नीले में इसमें जाहिर आ गया। अर्रजुलु, अर्रजुलु जलस, लड़का बैठा, आदमी बैठा। कहां बैठा? अलल कुर्सी, कुर्सी पर। अभी इसी जुमले में अगर काना को दाखिल करें तो क्या होगा, जरा गौर फरमाइए। काना रजुलु, काना, काना रजुलु मुस्लिमन। देखिए काना जब आ जाएगा तो अगर काना को हटा दीजिए तो क्या होगा, रजुलु मुस्लिमुन था। काना अंदर दाखिल होने से काना रजुलु मुस्लिमन, इस तरह से तब्दीली आती है। जरा गौर फरमाइए, काना पहले दरअसल क्या था, कवना था, फिर काना बन गया यकुन। इसकी गर्दान बिल्कुल एक माजी के वर्ब के मुताबिक होती है। काना मतलब है हुआ काना। काना जब लेंगे तो याद रखना कि वो हुआ के लिए बात, इसके मायने होंगे वो था। हुमा काना, वो दो थे गायब मर्द। हुम कानो, वो तमाम मर्द थे। हिया कानत, एक मोनस गायब थी। हुमा कानता, दो मोनस गायब थी। रुकेंगे, स्टॉप बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं स्टॉप? छठवा सेगा आएगा तो आपको मालूम है, लाम के लिए को सुकून देना पड़ेगा। यहाँ आइए, देखिए पढ़िए। काना, काना, कानो, कानत, काना था कुन्ना, यहाँ पे बनेगा कुन्ना। अब कुन्ना के आगे आपको आसान है, ता तुमा तुम, ती तुमा तुमना, और तू और ना, तो क्या हो जाएगी इसकी गर्दान? काना एक गायब मुज़क्कर था, काना दो गायब मुज़क्कर थे, कानू तमाम गायब मुज़क्कर थे, कानत एक गायब मोनस थी, कानता दो गायब मोनसें थी, कुन्ना तमाम गायब मोनसें थी, कुंता तू एक मुज़क्कर था, कुंतुमा तुम दो मुज़क्कर थे, तुम तमाम मुज़क्कर थे, कुंती तू एक मोनस थी, कुंतुमा तुम दो मोनसें थी, कुंतुन्ना तुम तमाम मोनसें थी, कुंतु मैं था, कुन्ना हम सब थे। जरा ऑनलाइन वाले जरा एक बार पढ़ लीजिए जोर से। काना, काना, कानो, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना। काना, माशाअल्लाह। काना he was, काना Yes. both were, कानु they all were, कानत जी। she was, कानता
two female were, kunna all female were, kunta you were, kuntuma you both were, kuntum you all were, kunti she was, kuntuma they both female were, kuntuna they all female were, kuntu I was, kunna we were. चलो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। हाँ भाई और कोई पढ़िए, उर्दू में पढ़िए। काना, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए माशाल्लाह। काना एक गाय मुजक्कर था। काना दो गाय मुजक्कर थे। कानू तमाम गाय मुजक्कर थी। कानत एक मुअन्नस थी, गाय मुअन्नस थी। कानता दो गाय मुअन्नस थी। कुन्ना तमाम गाय मुअन्नसें थी। कुंता एक मुजक्कर था। कुंतुमा दो मुजक्कर थी। कुंतुम तमाम मुजक्कर थे। कुंती एक मुअन्नस थी। कुंतुमा दो मुअन्नस थी। कुंतुना तमाम मुअन्नसें थी। कुंतु मैं था। कुंतुमा कुन्ना हम सब। अच्छा भाई ये मेहरबानी करके इसको याद करना जरूरी है। हाँ चलिए अब आएंगे हम लोग मुजारे की तरफ। काना का मुजारे होता है यकूनु। यकूनु के मायने होते हैं, प्रीडोमिनेंटली इसको इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए, होगा। एक गाय मुजक्कर होगा। यकूनानी दो गाय मुजक्कर होंगे। यकूनुना तमाम गाय मुजक्कर होंगे। तकूनु एक गाय मुअन्नस थी। तकुनाने दो गाय मुअन्नसें थी। यकुन्ना तमाम गाय मुअन्नसें थी। तकुनु तू एक हाजिर मर्द था। तकुनाने तुम दो हाजिर मर्द थे। तकुनुना तुम तमाम हाजिर मर्द थे। तकुनीना तू एक हाजिर मुअन्नस थी। तकुनाने तुम दो हाजिर मुअन्नसें थी। तकुन्ना तुम तमाम हाजिर मुअन्नसें थी। अकुनु मैं पूरा गलत पढ़ रहा हूं, फिर से एक बार। यकूनु वो होगा। यकूनाने वो दो होंगे। यकूनुना वो तमाम मुजक्कर होंगे। तकुनु एक गायब मुअन्नस होगी। तकुनाने दो गायब मुअन्नसें होंगी। यकुन्ना तमाम गायब मुअन्नसें होंगी। तकुनु तू होगा। तकुनाने तुम दो होगे। तकुनुना तुम तमाम होगे। तकुनीना तू एक हाजिर मुअन्नस होगी। तकुनाने तुम दो हाजिर मुअन्नसें होंगी। और तकुन्ना तुम तमाम हाजिर मुअन्नस से होंगे। अकुनु मैं हूँगा। अकुनु हम होंगे। चलिए कोई पढ़ के देख लीजिए एक बार। यकूनु he will be. यकूनानी both He of them will be. यकुनु he will be. He will. यकूनानी they both will. यकूनुना they all will. रुको। यकुनु का मतलब होगा he will be। हाँ अदे बोल। यकूनु he will be. यकूनानी they will be. They both will be. यकूनुना they all will be. तकुनु she will be. तकुनानी both female will be. यकुन्ना all female will be. तकुनु you will be. तकुनानी you both will be. तकुनुना you all will be. तकुनीना you female will be. तकुनानी you both female will be. तकुन्ना you all female will be. अकुनु I will be. नकुनु we will be. हाँ चलिए भाई उर्दू में कोई एक मोहतरमा पढ़िए। यकूनु वो होगा, वो एक मर्द होगा। यकूनानी वो दो मर्द होंगे। यकूनूना वो सब मर्द होंगे। तकूनु वो एक मुअन्नस होगी। तकूनानी दो मुअन्नस होंगे। यकुन्ना वो सब मुअन्नस होंगी। तकूनु तो एक मुजक्कर होगा। तकूनानी तुम दो मुजक्कर होगे। तकूनूना तुम सब मुजक्कर होगे। तकूनीना तो एक मुजक्कर होगी। तकूनानी तुम दो मुजक्कर होंगे। तकुन्ना तुम सब मुजक्कर होंगे। तुम सब मुअन्नस होंगे। सॉरी। अकूनु मैं होंगी। तकूनु हम सब होंगे। चलिए अब थोड़ा सा जुमलों की तरफ जाते हैं। अब ये दोनों को जरा एक साथ कंपेयर करके देखिए। इन्ना और काना को दोनों को सामने सामने रख के देखिए। इन्ना अपने इस्म को मंसूब करेगा।
खबर को छीएगा नहीं। काना अपनी खबर को मंसूब करेगा, अपने मुब्तदा को छीएगा नहीं। बस इतना ही फर्क है इसके तरतीब में। इसको जरा गौर से रखें, संभाल के रखें। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए, अल बैतु करीबुन, घर है करीब, इसके सामने अगर काना दाखिल कर दिए तो होगा कानल बैतु करीबन। करीबुन से क्या बन गया? करीबन। अल बैतु करीबुन का मतलब है घर है करीब। है लिखा नहीं जाता अरबी में, आपको अपने दिल से डालना पड़ेगा है, लेकिन था लिखा जाता अरबी में। था यानी काना हो गया। तो घर था करीब, पहले का मायना है घर है करीब, दूसरे का माना घर था करीब। आप ध्यान में रखिए, नोट करके रखिए, है लिखने का कोई तरीका अरबी में नहीं है, अलबत्ता था लिखने का तरीका है। दूसरा जुमला देखिए, अल बाबू मफ्तूहुन। मफ्तूहुन का मतलब खुला, खुला। दरवाजा है खुला, दरवाजा है हमने अपने जेब में से निकाल के डाला। इधर आ जाइए, कानल बाबू मफ्तूहन, दरवाजा था खुला हुआ, ये आपको याद रखना। नीचे देखिए, काना के साथ में जो मुब्तदा होता है वो इसमें काना बन जाता है, उस पर वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, अमल नहीं करता। अलबत्ता खबर काना के ऊपर वो बदल देता है, उसको मंसूब कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? थोड़े और एग्जाम्पल भी कर लेंगे, जरा आसान हो जाएगा। सादा जुमले इसमें अब नहीं है। अहमदो तालिबुन, अहमद है तालिब। अल फस्लो नवीफ, क्लास है साफ सुथरी। नीचे आ जाइए, सादे जुमले इसमें आए, अभी खाना इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करें। नीचे देखिए, अभी फिल मस्जिदी, मेरे वालिद है मस्जिद में। अब तिलमीजो माहिरुन व नशीतुन। अब तिलमीजो है बच्चा, माहिर है जी शागिर्द। या देखिए, हामिदुन मुदर्रिसुन, ये सादा जुमला इसमें है। अब काना इसके अंदर दाखिल किया हमने, काना हामिदुन मुदर्रिसन हो गया, मुदर्रिसुन से क्या बन गया? मुदर्रिसन हो गया। अब औरतों के लिए देखिए, हिया का सिगा लेंगे, काना का, हिया का सिगा कानत है। फीमेल अगर आ रहा है यहाँ पे तो हमको कानत लाना पड़ेगा, उसका मुब्तदा हो जाएगा आमीनतु मुदर्रिसतन। तो इसको देखकर आपको समझना पड़ेगा काना का इस्म कौन है, पहले हामिद है, नीचे कानत का इस्म आमीना है। कानत इस्तेमाल करे हमने क्योंकि मोनस का सिगा था। ऊपर में मुदर्रिसन इसलिए लिखे कि मर्द है मुदर्रिस, उस पे नस्ब आ गया मुदर्रिसन। नीचे हमने इसलिए बताया कि वो फीमेल है, इसलिए मुदर्रिसतन। इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर लिखा है, उमरो गायबुन, उमर एब्सेंट है। अब इसको, इसके अंदर उमर कोने हुआ है, ठीक है, उमर हुआ है तो हमारे पास काना के लिए, हुआ के लिए क्या काना है, तो काना के बाद में इसमें जाहिर है उमरो। अगर उमर नहीं लिखा होता तो खाली काना से पढ़ते थे हम, जैसा मैंने कल आपको जुमला फेलिया में बताया था। अगर हमको उमर निकाल दीजिए, काना क्या लिखेंगे अपन? गायबन। उन्हें है, उन्हें था गायब, क्या बन जाएगा? उन्हें था गायब। तो ये मुस्ततिर हो गया, लेकिन जब जाहिर हो गया तो क्या लिखेंगे? काना उमरो गायबन। क्लियर हो गया? अब इससे ज्यादा जुमले लेके प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने जानबूझ के आपके लिए गर्दाने साथ में लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी। पहला जुमला कोई पढ़िए भाई, बच्चियों में से पढ़ो, पढ़ सकते हैं? ये सब अत्तामु जाहिजुन, जाहिजुन। अब ये अत्तामु इसमें है, अल से शुरू हो रहा है, मुब्तदा है क्योंकि वो मारिफा है, और जाहिदुन जो है नकीरा है, तो ये जुमला इसमें बन रहा है। खाना है गरम, फूड इज हॉट।
अब इसके अंदर काना दाखिल कर लीजिए, आगे का जुमला छिटका दीजिए इसको, कानत तामु जाहिज़न, खाना था गरम। पहले पहले जुमले का मतलब है खाना है गरम, अब बन गया खाना था गरम। अब जरा गौर फरमाइए, पहले जुमले में मुब्तदा कौन है? ताम था, और खबर कौन है? जाहिजुन था। काना इंट्रोड्यूस होते ही काना ने अपने इस्म पर कोई भी अमल नहीं किया, तामू तामू ही रह गया, तामू जैसे के वैसा है, लेकिन जाहिजुन की जगह जाहिजन हो गया। तो इसमें काना कौन है? ताम, और खबर खाना कौन है? जाहिजन। जुमला नंबर 2 देखिए, कोई और पढ़िए भाई, जल्दी करो। ज़ैदुन ज़ू इल्मिन। हाँ, जैद है इल्म वाला, जैद है इल्म वाला, जैद पजिस करता है इल्म, जैद रखता है इल्म, जैद के अंदर इल्म की तादाद है। तो जैद हो गया हमारा यहाँ पर मुब्तदा, जू इल्मिन ये मुदाफ मुदाफ ले बन रहा है, तो बोलेंगे इल्म वाला है। ये भी पढ़ाएंगे आपको आगे। अब इसके अंदर हमको काना दाखिल करना है, तो काना दाखिल करेगा, हाँ जू बन जाएगा, सब जाके जा, क्यों तो हमेशा मुजाफ मुजाफ इलैहि में मुजाफ जो है वो पूरा अटैक को संभालता है, मुजाफ इलैहि पर कुछ असर नहीं होता। तो यहाँ पे जू का जा बन गया। तो इस्मु काना जैद है, खबरू काना कौन है? जा है। खबरू काना कौन है? जा है, वाला, और इल्म वाला मिलाए तो पूरा जुमला बन जाए। सर वो ज़ा ज़ू ज़ी है ना सर वो? हाँ, वो अब आज इसको हम देखेंगे, वापस आपको रिवीजन करके देंगे। अभी फिलहाल खाना पे हम जोर देंगे। अल इख्तिबार साबुल, इख्तिबार का मतलब है इम्तिहान, इम्तिहान है मुश्किल, द एग्जाम इज डिफिकल्ट। तो मुब्तदा हो गया द एग्जाम, डिफिकल्ट हो गई खबर, काना दाखिल हुआ तो क्या बन गया? अल इख्तिबारो, जैसे कोई तरह काना ने इस पर अमल नहीं करा, और साबुन का साबन बन गया, ये बन गई खबर नसब। अगला जुमला पढ़िए भाई कोई। हाउलाई कौमुन जालिमून। हाँ, हाउलाई कल सिखाया मैंने, ये है एक जालिम कौम, क्योंकि यहाँ पर देखिए कौमुन जालिमूना, कौम है और जालिमुन है, दोनों भी जो है क्या है? नकीरा है, और दोनों भी रफालत में, कौमुन रफालत में, जालिमूना अगर इसको नसब जर कर जालिमीना जालिमीना होता, इसलिए क्या बन गए वो दोनों भी? क्या बने भाई? मुरत्तब बन, मौसूफ सिफत हो गए। मौसूफ सिफत। तो खबर हमारी मौसूफ सिफत कौमुन जालिमूना है, हाउलाई हमारा मुब्तदा है। अब हमने काना दाखिल किए तो हाउलाई पे तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो जिसमें काना है, अलबत्ता खबर पर असर हो जाएगा, और वो क्या बन गया? कौमुन की जगह कौमन, और जालिमीना बन गया जालिमीना, किंतु जैसा मौसूफ होता है वैसी सिफत है। किसी को सवाल है इस जुमले में? नहीं है। अना मरीदुन, अना बोले तो मैं, मरीदुन बोले तो बीमार। तर्जुमा कैसा होगा? किसका तर्जुमा जी? काना हाउलाई कौमन ज़ालिमीना, ये थे जालिम कौम, वो सब वो जालिम कौम थे ऐसा। ये सब जी, ये सब वो सब हाँ जी जी, हाँ दूर जाता। होमवर्क सही करो, होमवर्क करना जरूरी। जी। अना मरीदुन, मैं हूं बीमार। अब अना के लिए क्या जाके देखिए भाई, वहां पे काना काना कानो, कानत कुंतु, कुंतु है कि नहीं देखो भाई, आ गया तो यहाँ कुंतु डालो, अना को हटाओ कुंतु डालो। कुंतु में बारिश जमीर अंदर ही है उसका इंडिकेटर। कुंतु यानी कि मैं था, देखिए वहां पे सीधा नंबर 13 पढ़िए, पहले चार्ट दिख रहा ना वो, हाँ पहले क्या है? काना, उसके नीचे कानत, फिर कुंता कुंती कुंतु, कुंतु यहाँ पे लेना पड़ेगा, आना को हटा देना, कुंतु डाल देने का, आई वॉज हो गया। हाँ, तो अब किसी ने पूछा कि यहाँ पे काना का इसम कौन है, तो बोलना आना है।
और खबर कौन है? मरीजन है। हम्म, अब नीचे आ जाइए, अगला पढ़िए भाई कोई नीचे का। नहीं पढ़ते? हुम तुल्लाबुन होम यानी कि वो तमाम लोग थे तालिब इल्म, वो तमाम है तालिब इल्म। तालिब इल्म। ठीक है, होम का मतलब दे आर स्टूडेंट्स। अगर इसको अगर काना दाखिल करेंगे तो काना हुम के लिए क्या आएगा? जाओ ऊपर लाल देखो, काना काना कानू, ये कानू है। कानू तुल्लाबन, तो कानू का क्या है? इस्म हुम है। कुंतु का अना था तो यहाँ कानू का हुम है, ये पहचानना ना इसके अंदर। मैंने कहा बहुत अहम है ये टॉपिक। तीसरा जुमला पढ़िए भाई। हिय मशगूलतुन। शी इज बिजी, शी इज बिजी, जी। शी इज बिजी। तो अब इसको अपने को जो है शी का वहां पर सेगा लाना पड़ेगा, लाल देखिए कानत। कानत मशगूलतुन, शी वाज बिजी, शी वाज बिजी। माशाअल्लाह, ये समझ गया कि भाई सबको? बराए मेहरबानी ये जुमलों को संभाल के रखिए और इसको जोर जोर से पढ़िए ताकि आपको रमजान में खिरत में ये तब सुने आने वाले काना कानत, कानो बिमा कानो यकसिबून, कानत मिनल का खालिदीन, ये सारी चीजें बहुत सारी जगह आती है। चलिए, अब अगर हम पढ़े थे पहले फेल अमर बनाना, तो फेल अमर बनाने क्या करना पड़ेगा? हाजिर का सिगा लेंगे भाई। लाइन नंबर 3 में जाओ, तकुनो तकुनो तकुनानी तकुनोना तकुनीना तकुनानी तकुन्ना। तो आपको पता है कैसा करने का? तो उसमें ता को अलामत मुजारे को गिरा देंगे, नून पर क्या करेंगे भाई? सुकून दे देंगे, क्या बचेगा? कुन। कुन बन तो जाएगा। हाँ, तो कू पे बाद में वाव लगाने की जरूरत नहीं है, उसको हटा देंगे, उसको कुन बना देंगे। हाँ, दूसरा देखो, तको नानी क्या बनेगा? आपको मालूम है जब आपको नस्बी बनाना है तो क्या करना पड़ता है? नून गिर जाएगा, ता गिर जाएगा, नानी का ना रह जाएगा, और क्या बनेगा? कूना, कूना, कुन, कूना, कूनो, कूनी। तो कुन यानी सामने वाले को बोल रहे हैं, कुन यानी तो हो जा। या ऑर्डर में क्या बनेगा? विल बी का बनेगा बी। अल्लाह ताला की सिफत है कुन फयकुन, वो है ये कुन, हो जा, बिकम। इंग्लिश में बोलो बिकम। हाँ, किसी शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जा। कभी कभी ऐसा होता है कि 16 साल का लड़का पूरे बाल शक्ल जाए तो बूढ़ा दिखता, बिकम हो गया वो। ठीक है, तो क्या बन गया? कुन, कुना, कुनु। तू एक हो जा, सामने वाले को ऑर्डर कर रहे ना, कुना तुम दोनों हो जाओ, कुनु तुम सब हो जाओ, कुनी तू एक औरत हो जा, कुना तुम दो होते। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको ये? कुन्ना हाँ भाई, इसको पढ़ेंगे जोर से और जोर से पढ़ के समझेंगे। अहमद साहब पढ़िए। हाँ रुको, काना आ गया। काना जब आएगा तो उसका इस्म होना पड़ता, तो जरा इस्म ढूंढेंगे, पीछे चलो, ये काना लाओ, ये ऊपर काना देखो कौन है? हुआ है। हाँ तो बोलो, मायने बोलो। वो था मौजूद, शाबाश। इस्तमी, सुनो गौर से सुनो, इस्तम। कानत नाइमतन, बोलो। हाँ, तो कानत कौन है? कानत कौन है? देखिए आप, ये नीचे देखो, काना काना कानत। 6 नंबर पे दिख रहे, आपने चौथे नंबर पे फीमेल। वो थी सोई हुई, शी वॉज स्लीपिंग। आगे बढ़िए। हाँ हाँ, काना के अंदर कौन छुपा हुआ है भाई? हुआ छुपा हुआ है। वो था एक छोटा लड़का, बच्चा।
बोलो शाबाश, काना है ना, जैदुन आया, तो बोलो काना के लिए अभी अपने को ढूंढने की जरूरत है क्या? इसमें काना नहीं, इसमें काना जैद है। बोलो जैद था एक स्टूडेंट। हाँ, नीचे आ जाओ। हाँ, जाईतन। हाँ बोलो, कानत आ गया। कानत के बाद में आपको हिया का सीधा छुपा हुआ रहेगा, या तो इसमें जाहिर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें जाहिर फातिमा दिख रही। बोलो फातिमा थी भूखी, बहुत भूख लगी थी उसको। हाँ, तिफलुन। तिफलुन छोटे पिल्लू, छोटे बच्चे, किड होता है ना, किड, किड्स किंगडम। हाँ बोलो, मैं था एक छोटा बच्चा, मैं था छोटा मोटा नन्ना मुन्ना बच्चा। हाँ, माशा। कुंती, कुंती, चलो ढूंढो कुंती को, ढूंढो भाई, कुंती कहाँ है? देखो उधर देखो, देखो कुंती, 1 2 3 4। कुंती यानी जाहिर, हाजिर, एक मोनस, वाहिद मोनस। बोलो कुंती क्या बोलती, देखो पढ़ो। कुंती मौजूदतन फी मंजिली, ई लंबा है। हाँ, कुंती बोले तो तू थी मौजूद मंजिल में, घर में, बड़ा बंगला हमारे घर में कुंता। जो मंजिली, हाँ, हमारे मेरे मंजिल घर में। हमारे घर, मेरे घर में, शाबाश मेरे। अच्छा कुंता आ गया। कुंता बोले तो क्या है भाई? तू एक मर्द। नाइमन, तू था सोया हुआ, अल शरीरी, बिस्तर पर। बिस्तर पर। बिस्तर पर। नोट करो भाई, ये जुमले लिखे रखो, आप जोर जोर से पढ़ना है आपको याद करने के लिए, क्योंकि एकदम नया टॉपिक है। काना हाजल वलदो कादिमन। हाँ, काना, काना का कौन है भाई? बोलो इसम कौन है? वाह, नहीं, हाजा है। ये लड़का था, दरअसल इसका इसम बन रहा मुरक्कबे इशारी। ये लड़का था एक नौकर, खादिम का मतलब नौकर। देखो हाजा मारिफा, अल वाला तो मारिफा कल ही सिखाया मैंने। हाँ, फ्रेज हो गई। तो हाजा को बोलेंगे इशारा, और अल वाला तो बोलेंगे मुशारो नहीं लेंगे। इसमो खाना, शाबाश। तो इसमो खाना कैसा? तो रफा अलग में होना, दिख रहा नहीं, लेकिन बोलेंगे हम भाई, एस्टिमेट कर लेंगे। आगे बढ़िए। हाँ, हाजी हिल, तारिबतो सगीरतन, ज़ईफ़तुन, ज़ईफ़तुन। ज़ईफ़तुन। अब देखो काना हाजी हिल तालिबतो, तो ये लड़की थी, ये तालिब ना, ये तालिबात थी। क्या थी भाई? वीक, कमजोर। ज़ईफ़तुन वो तो वीक, ज़ईफ बोलते ना, बूढ़े को ज़ईफ बोलते। हदीस भी अगर पुरानी वीक है तो बोलते ना ज़ईफ हदीस। चलिए अब इसके मायने बोलो भाई, सब लोग एस्टिमेट करके बोलो। आईना कुंता, Where was he? आईना, Where are you? Where are you? नहीं, कहाँ मेरा पर है आई तुम? तू कुंता कहाँ का मतलब तू, यू वेयर यू, आप? Where was अलग अलग, अलग अलग। आईना बोले तो वेयर, और कुंता बोले तो चलो चेक करेंगे, चलो चेक करेंगे। कुंता यहाँ है, देखो कुंता 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 कुंता, ये कुंता, कुंता नंबर 3। कुंता बोले तो तू एक मर्द कहाँ था, इंग्लिश में बोलते ना वेयर वर यू। हाँ ये है, ऐसा पकड़ना पड़ेगा भाई। अब हल आ गया। हल यानी कि क्या भाई? हमज़तुल इस्तिफहाम के जैसा काम करेगा। क्या? कानत किसके लिए? कानत किसके लिए भाई? हिया के लिए। लेकिन मोहम्मद जाहिर हो रही, क्या हो गई? हो गई जैनब हो गई ना। हाँ, है क्या जैनब? हाँ, माँ कन्ना, माँ कुन्ना तो कुन्ना मालूम है, कुन्ना कुन्ना ढूंढेंगे, चलो कुन्ना ढूंढेंगे। कुन्ना कौन है भाई? ये देखो कुन्ना, शेटा। माँ बोल तो साथ में, है क्या जैनब थी क्या जैनब तेरे साथ में? तो इसमें खाना कौन है? जैनब। और साथ में सवाल है, चलो माजा, माजा कुंता तफ, हाँ, तफअलु हुनाका। यफलु, बोल, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पाला यफलो,
यफलो तफलो तू तफलो अफलो कर रहा नफलो, है ये वर्ब को पूछेंगे, हुना का बोल तो वहां पे माजा, बोलो माजा तू क्या था कर रहा वहां पर, बोलो व्हाट वेर यू डूइंग देयर। आराम आराम से देखो, माजा का मतलब व्हाट, कुंता बोले तो किसके लिए कर रहे हैं अपन, यू के लिए, तो यू वेर, व्हाट वेर यू, है ना। और पाला बोले तो करना, और अगर मुजारे में जाएंगे तो कर रहा, व्हाट वेर यू डूइंग। हुना बोले तो यहाँ का लगा तो हुना का बोल तो वहां, हुना इज इक्वल टू हियर, हुना का इज इक्वल टू देयर, व्हाट वेर यू डूइंग देयर। देखो सादी जुबान में भी अरब बात करता ना, उन्हें काना का भयंकर इस्तेमाल करता भाई, काना के बगैर अरबों का काम नहीं जमता। ये तो मेरे साथ यमनी लोग थे, काना यकून बहुत इस्तेमाल करते। हाँ चलो, यकून बोलो, यकूनो मौल्लमन, मौल्लिमन, यकूनो कौन है जी, यकूनो कौन है, चलो ढूंढ के आओ। ये देखो यकूनो मोहनस पहले से यकूनो, यकूनो बोल तो ही वॉज, ही विल बी, ठीक है, ही विल बी वो होगा। चलो पढ़ो, यकूनो मौल्लिमतन, अच्छा अब यकूनो आ गया तो मौल्लिमन, ही विल बी अ टीचर। हाँ और तकोनो कौन है, देखो भाई तकोनो, हाँ देखो यकोनो तकोनो तकोनो अकोनो नकोनो शी, चलो आओ पढ़ो, तकोनो मुअल्लिमतन, शी विल बी अ टीचर। अच्छा अब फिर से पढ़ो, तकोनो गनियन, तकोनो अब जहाँ पे है गनियन तो नहीं, क्या नहीं है, मेल है ये। हाँ यू विल बी अ रिच मैन, रिच मैन। हाँ साकनु माँ की, हाँ 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 हाँ। अब क्या गया भाई, ये सा क्या है भाई, बोल साहब सुन रहे क्या, सा इज इक्वल टू विल। विल विल। हाँ अपुनो बोल तो विल बी, अपुनो बोले भाई आई विल बी, माँ की तेरे साथ, आई विल बी विथ यू। हाँ सा और सौखा दोनों भी इक्वल टू विल और शैल है। आईना तकोनो बाद सबोइल, आईना वेर, तकोनो यू, विल you बी were, where will you be बाद सुबह, after this week, आफ्टर दिस वीक। where will you be after this week। बाकी लोगों सुनो भाई, आईना बोले तो where, तकोनो जरा चेक कीजिए यहाँ पे आके, तकोनो ये देखो, तकोनो दिख रहा है नंबर 2 में दिख रहा, मुजारे में देखो यकोनो तकोनो, तकोनो का मतलब है शी विल बी भी हो सकता है, यू विल भी हो सकता है, तो यहाँ पे लगाएंगे तकोनो, आईना तकोनो, आईना बोले तो वेर, तो कहां होगा, बाद असबुई, इस हफ्ते के बाद तो कहां होगा। चलो कुन मुजताहिदुन, मुजताहिदुन था वो, तो कुन आने से क्या हो गया, कुन ही ऑर्डर है, अम्र है, याद है, ये देखो अम्र देखो, ये देखो कुन, हाँ तो हो जा बी हार्ड वर्किंग, हो बी जा एक्टिव। मेहनती, कुन का ये कुन। उरीद आ गया, देखो उरीद मैंने पढ़ाया था आपको, उरीद का मतलब क्या है, वांट, आई वॉन्ट दैट, बोलो मैं चाहता कि, हाँ ये बोले भी अन है, अकुनो का मतलब क्या है, हो जाऊं ताजिर, मैं चाहता कि हूं मैं एक ताजिर, आई वॉन्ट टू बी अ मर्चेंट। मर्चेंट। अच्छा भाई मैं रुकता हूँ, ये जुमलों में से आप जरा सा मेरे साथ में कोऑपरेट कीजिए, पढ़िए और एक एक जुमले को मेरे से पूछिए, ताकि आप ऐसा ना महसूस करें कि भाई इसमें से हम खाली गुजर गए। तो सबसे पहले ये जुमले समझने के लिए यहाँ ये चार्ट को पढ़िए, काना बोले तो उन्हें था, काना वो दो थे, कानू वो सब थे, कानत एक औरत थी, कानता दो औरतें थी, कुन्ना वो तमाम औरतें थी,
कुंता तू था, कुंतुमा तुम दो थे, कुंतुम तुम सब थे, कुंती तू एक मर्द था। तो क्या कुंत नहीं, तू एक औरत थी, कुंतुमा तुम दो औरतें थी, कुंतुन्ना तुम सब औरतें थी, कुंतु मैं था, कुन्ना हम थे। अब होगा वाले पढ़ो में, यकूनु एक मुजक्कर होगा, यकूना ने दो मुजक्कर होंगे, यकूनुना तमाम मुजक्कर होंगे, तकुनु एक मुअन्नस होगी, तकुना ने दो मुअन्नसें होंगी, यकुन्ना तमाम मुअन्नस से होगी, तकुनु तू होगा, तकुनानी तुम दो और मर्द होंगे, तकुनुना तुम तमाम मर्द होंगे, तकुनीना तू एक मुअन्नस होगी, तकुनाने तुम दो मुअन्नस से होगी, तकुन्ना तुम सब होगे, अकुनु मैं हूँगा, नकुनु हम होंगे। मेरी आपसे एक इल्तजा है, ये जुमले नोट करके जाइए और कल तैयार होके आइए और इसको अपन और करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाए। यहां तक है, अगर आप चाहते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। जरा पढ़िए, बाजू में आपको रेफरेंस के लिए टेबल दिया है, हुआ, हुआ का मतलब वो, फिल गई थी। हाँ बोलो, मायने बोलो भाई, ऑनलाइन वाले सब बोलो गए। नहीं सर, हाँ सर, हुआ फिल बढ़िया। बैती, वो घर में है, हुआ फिल वो बैती, है घर में, शाबाश। अब उसको जरा बना दीजिए, यकूनु फिल बैती, ही विल बी एट होम, वो होंगी या होगा, क्या यकुन हो तो वो होगा घर में। हुआ की जगह कौन आया, देखो भाई वहां पे काना का क्या बना, यकुन हो। हाँ जरा मैं आपको जरा उठ के बताता, बच्चियां देख के परेशान हो बोल रही थी। देखो यहाँ पे हुआ है, ये काना है, यहाँ पे क्या रहा, यकुन हो, तो ये लेने का है। यकुन हुआ नहीं कि उन्हें होगा, घबराने की कतई जरूरत नहीं। अंता, अंता मसरूरुन, मैं हूँ, आई एम हैप्पी, मैं हूँ बहुत खुश। ठीक है, अंता के लिए क्या लगाना है, नीचे आ जाओ, अकुनो, हम अकुनो या नकुनो क्या लगाएंगे भाई, क्या है, अकुनो। अंता बोले तो तू बोले तो तकुनो। हाँ, यू विल बी हैप्पी, ये हो गया, यू आर हैप्पी, तू है खुश, ये होगा तू होगा खुश। अब नहनु, नहनु गालिबूना, हम है पावर पे, गालिब ने किस पे भी, डोमिनेंट, हम है डोमिनेंट, हम वर्चस्व में हैं। नहनु गालिबूना, नहनु कौन है भाई, गालिबूना, तो क्या आएगा यहाँ पे, अकुन आएंगे कि नकुन आएगा, नकुन गालिबीना। जो तो बूना क्या बन गया, बीना बन गया, क्यों भाई, काना का खबर है। हाँ अटक, हाँ सवाल करो, अत्तुल्लाबु मुस्तहीदूना, है क्या स्टूडेंट्स मेहनती, आर द स्टूडेंट्स हार्डवर्किंग। हाँ स्टूडेंट्स कौन है भाई, जमा है, जमा बोले तो यहाँ जाएंगे, मुजारे में तो यहाँ जाएंगे, यकुनु में आ जाएंगे, बोलो यकुनु, यकुनु तुल्लाबु मुस्तहीदूना, मुस्तहीदीना, होंगे क्या तालिब इल्म मेहनती। यहाँ पे क्या बोल रहे है, क्या यहाँ पे क्या बोल रहे, होंगे क्या, यहाँ पढ़ो, अल अस, बोलो अल अस क्या, असीलतु, असीलतु, हाँ अल असीलतु, असीलतु, क्वेश्चन, असीलतु मतलब सवाल, क्या, साबतुन, साबतुन, क्या पूछा तूने, क्या तू बोले तो मैं, क्या पूछा मैंने, मुश्किल सवाल, सवाल, हाँ सवाल, क्या सवाल है मुश्किल, नहीं तू आया ना, हाँ असीला, तो क्या, क्या जुमला इसमें आया, तो बोलिए क्या सवाल है, नहीं सवाल है मुश्किल, मुश्किल, सवाल है मुश्किल, अल, अच्छा सवाल है मुश्किल। अब इसको वो करिए भाई, तकुनो को नहीं, होगा क्या सवाल मुश्किल, ठीक है। तो यहाँ रुकते हैं, आप ले लीजिए, कल फिर आगे इसका लेसन नंबर लेवल 2 पे जाना पड़ेगा कल। आप जरा इतना अच्छा से देख लीजिए, ये वीडियो को सेव कीजिए और इसके जो भी मैंने टॉपिक्स बताया उस पर ख्याल कीजिए। कल लेवल 2 में जाएंगे। कल क्या है, जुमेरात है, हाँ तो जुमेरात जुम्मा 2 दिन पढ़ना पड़ता, खाना, खाना बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक।
खाना नहीं आया तो था चलेगा और होगा भी चलेगा, खाना आना जरूरी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। प्लीज कर देखते कि तजवीज आए साइमा हाँ फोन बेरकन बजा था बस आवाज टाइप हाँ तो ना टाइप पैसे दिए पैसे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ये आयत आप तमाम सब जानते हैं, कौन सी आयत है? कोई बताएंगे ये आयत कहाँ पर है, कौन सी है? सूर्य बकरा सूरह बकरा की शुरू वाली आयत है जी। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, आयत को पढ़ना सीखेंगे, उसका तरीका पढ़ने का क्या है, उसके उसूल क्या है। ठीक है, पहला जो लफ्ज नजर आ रहा वल्लज़ीना, पहला हर्फ वाव है और उसके ऊपर जबर है मुतहर्रिक। वाव जबर की हरकत को हमेशा जल्दी पढ़ेंगे। फिर लाम जबर ला तशदीद के साथ, जाल या जेर, जी या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर आ गया, इस वजह से या मद्दा हो जाएगा। नून जबर ना, वल्लज़ीना युमिनूना, या पेश यू, हमजा साकिन, यु, हमजा झटके के साथ पढ़ना, यु। मीम जेर में, नून वाव पेश, नो, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश आ गया, इसलिए वाव मद्दा का कायदा। फिर नून जबरना, युमिनूना, युमिनूना, वल्लज़ीना युमिनूना, वल्लज़ीना युमिनूना। हमजा जो है, हमजा के ऊपर सुकून आ गया तो यहाँ पे झटके से पढ़ना है युमिनूना। लेकिन इसको पढ़ने के दो ऑप्शन है, हमजा को हज़फ भी किया जा सकता। हमजा अगर निकाल दिए तो उसकी जगह पे ये वाव की कुर्सी पे बैठा हुआ है तो वाव साकिन बन जाएगा, और या वाव पेश यो मिनूना। दो ऑप्शन है पढ़ने के, यो मिनूना और यो मिनूना। बिमा, बाजेर भी, मीम अलिफ जबर मा, अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जबर आ गया, इसलिए अलिफ मद्दा का कायदा। बिमा, हमजा पेश ओ, नून साकिन, जाल जेर जी, लाम जबर ला। अब नून साकिन आ गया तो नून साकिन के बाद वाला हर्फ देखना है कौन सा है। नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? जा, और जा कौन से हुरूफों में से है? इख्फा के 15 हुरूफों में से है, इसलिए नून की आवाज को नाक में छुपाकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। उन्जिला, उन्जिला, इलैका, फिर हमजा जेर ई, लाम या जबर लै,
या साकिन से पहले वाले हर्फ पर जबर आ गया, इस वजह से या लीन का फायदा, तो वो हो जाएगा इलई, इलई काफ जबर का, इलई का, इलई इलई का, इलई का, इलई का नहीं, इलई का। इलई वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, इलैका। अभी देखिए यहाँ पर है बिमा, मीम अलिफ जबर मा आ गया, अलिफ मद्दा का कायदा है, उसके बाद हमजा। तो हमको मालूम है कि अगर अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा, इनके बाद अगर तजदीद, हमजा और साकिन अगर आ जाए, हमजा, तजदीद सुकून। और सुकून अगर आ जाए, तो वहां पे एक मद दिया जाता और उसको थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक मद आ जाएगा, बिमा वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, फिर वाव जबर वा और मीम अलिफ जबर मा, वमा, फिर से आया उनजिला, नून साकिन के बाद आया जा, फिर नून हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफों में से है, इसलिए गुन्ना करके नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। और वही अलिफ मद्दा का कायदा है, उसके बाद हमजा है, तो हमजा आ गया तो यहाँ पे भी एक मद आ जाएगा, वमा उनजिला। उसके बाद है मीम नून जेर मिन, मीम के नीचे जेर है और नून साकिन फिर से आ गया। नून साकिन के बाद वाला हर्फ कौन सा है? काफ। तो काफ भी हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफों में से है, इस वजह से सेम यहाँ के जैसा कायदा यहाँ पे भी होगा, नून की आवाज को नाक में छुपाकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। मिन क़ब्ली का, उसके बाद है काफ बा जबर कब, काफ के ऊपर जबर है और बा साकिन हो गया, तो बा साकिन है तो वो 5 हुरूफों में से है क्या? काफ, ता, बा, जीम, दाल, बा आ गया, तो कलकला करके पढ़ेंगे, इको साउंड होगा, टकराई की आवाज। कब, लाम जेर ली, काफ जबर का, क़ब्ली का, मिन क़ब्ली का, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, फिर वाव जबर वा, बाजेर बी, बाजेर बाजेर भी है, फिर अलिफ लाम, उसके बाद वाला इसम जो है वो अलिफ लाम से शुरू हो रहा, और अलिफ लाम के इसम के पहले जो है ये बा लगा, वो हमजतुल वस्ल के साथ लग गया, तो ये हमजतुल वस्ल हो गया और ये लाम हो गया। अब ये जो आखिरती है, इसका पहला हर्फ हमजा है, हमजा हुरूफ है कमरिया के हुरूफों में से है, इस वजह से ये लाम सुकून के साथ पढ़ा जाएगा। ये बाजेर बी की हरकत सीधा लाम से मिलेंगी, वबिल आखिरती, ये हमजा है, इसके ऊपर खड़ा जबर है, तो खड़ा जबर कभी खड़ा जबर लिखा जाता और कभी ऐसा मद लिखा जाता, लेकिन दोनों की मिकदार सेम रहेंगी। आखिरती, वबिल आखिरती, फिर उसके बाद है हुम, हा मीम पेश हुम। अब मीम साकिन आया तो मीम साकिन के बाद वाला हर्फ देखना है कौन सा है। मीम साकिन के बाद क्या आया? या आया। मीम साकिन के कायदों में से ये है, अगर मीम साकिन के बाद बा और मीम आए तो गुन्ना होता, इसके अलावा कोई भी हर्फ आया तो गुन्ना नहीं होता। तो यहाँ पे या है, इस वजह से गुन्ना नहीं होगा। फिर या वाव पेश, यू, वाव साकिन से पहले पेश आ गया, वाव मद्दा का कायदा, यू
پھر قاف زیر قی، نون واو پیش نو، واو ساکن سے پہلے پھر آ گیا پیش، اس لیے واو مدہ کا قاعدہ، پھر نون زبر نہ، یوقنون، ہم یوقنون، اور جب یہاں پہ رک جائیں گے تو آیت کرنے کا قاعدہ یہ ہے، خالی دو زبر کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہوگی اس کو ہم تبدیل کر دیں گے جزم سے، ساکن سے، تو نون کے اوپر سکون آ جائے گا، یوقنون، یہاں سے ہو جائے گا وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، شروعات سے ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والذین یؤمنون بما أنزل إليك والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون، تو الحمدللہ اس کو پڑھنے کا طریقہ، تجوید کے اصول دیکھ لیے، اس کے اندر تجوید میں کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھئے، کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے؟ سر اب چلیں گے ہم اس کے، جی جی سر یہ یؤمنون اور یہ یوقنون، تو یہاں پر واو پہ جزم آیا تو حمزہ ساکن آیا، اور یہ یہاں پر بھی یہ حمزہ ساکن ہے کہ یوقنون میں؟ نہیں نہیں، یہاں پہ واو ساکن ہے اور یہاں پہ حمزہ ساکن ہے، حمزہ جو ہے وہ راجا ہے، اس کی اپنی الگ الگ کرسیوں پہ بیٹھ کے آتا، کبھی الف کی کرسی پہ آتا، کبھی واو کی کرسی پہ آتا، اور کبھی یا کی کرسی پہ آتا۔ اگر حمزہ سے پہلے پیش آ گیا تو واو کی کرسی پہ بیٹھے گا، اگر حمزہ سے پہلے زبر آ گیا تو الف کی کرسی پہ بیٹھے گا، اور اگر حمزہ سے پہلے زیر آ گئی تو یا کی کرسی پہ بیٹھ کے آئے گا۔ جی یہاں پہ حمزہ سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، اس وجہ سے واو کی کرسی پہ بیٹھ کے آیا حمزہ، اور اس کے دو آپشن ہیں، حمزہ ساکن پڑھ بھی سکتے اور نہیں بھی پڑھ سکتے، اگر نہیں پڑھیں گے تو حمزہ غائب ہو جائے گا، واو ساکن رہے گا، تو یؤمنون بنے، اور اگر پڑھنا ہے تو پھر حمزہ ساکن کے ساتھ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے یؤمنون، اور یہ یوقنون کے اندر تو واو ساکن ہے، اس میں حمزہ نہیں ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ۔ تو ابھی ہم بڑھیں گے اس کے ترجمے کی طرف، گرامر دیکھیں گے مختصر۔ ابھی گرامر ایک ایک لفظ رہے گا، آپ لوگ بتائیں گے اس کا ترجمہ اور اس کا کیا کیا گرامر ہے۔ سب سے پہلے ہے واو زبر وا، واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اور الذین کیا ہے؟ اس میں موصولہ، اس میں موصولہ، یہ اس کا نام ہے الذین کا، اس میں موصولہ، اور اس کے معنی کیا ہے؟ جنہوں نے یا جن لوگوں نے۔ اس کے بعد ہے یؤمنون،
युमिनूना क्या है, इसम है, फेल है कि हर्फ है? फेल है फेल है। फेल कौन सा है? माजी है, मुजारे है, अम्र है, नाहिया है? मुजारे है, माशाल्लाह। अच्छा बताइए, सुलासी मुजर्रद है कि मजीद फी है? मजीद फी है। मजीद फी है। मजीद फी के 8 बाबों में से कौन सा बाब है? बाब इफाल बाब इफाल, अस्लमा युस्लिमु। उसके बाद देखो, सही है कि गैर सही है? गैर सही है। गैर सही है। गैर सही की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। तो उसमें से कौन सी किस्म है वो? मिसाल यानी क्या? महमूज मिसाल यानी कि फा कलीमे पे हरफ इल्लत आ जाए। हरफ इल्लत कौन सी है? वाव और या अगर आ जाए तो वो मिसाल होता। अब यहाँ पे तो हमजा है, तो हमजा आया तो वो महमूज हो गया। मिसाल अजवफ नाकिस नहीं है, महमूज है, और महमूजुल फा। उसके बाद देखो, मालूम है कि मजहूल है? मालूम है। महमूज यानी जिस पर हमजा आ जाए, जिसके मादे के 3 हरफों में हमजा आ जाए, उसको महमूज बोलेंगे। तो ये मालूम है। फेले मुजारे है, सुलासी मजीद फी है, गैर सही है, और मालूम है। युमिनूना। अब बताओ सीगा कौन सा है? जमा मुज़क्कर माजी का सिरा है मुज़क्कर। जमा, हाँ, माजी का सीगा। मुज़ारे का सिरा है हाँ, सीगा बोलो, सीगा कौन सा? जमा मुजक्कर गायब, वो सब, वो तमाम गायब मर्द। युमिनून, आप बोलो मायने। ईमान लाए, वल्लज़ीना जो लोग ईमान लाए। ईमान लाए कि लाते हैं? लाते हैं। मुजारे है ना, मुजारे। लाते हैं। हाँ। अब ये जब इसमें मौसूला के साथ जब फेल आता, तो ये दोनों मिल के तर्जुमा होता। इसके मायने हमने करे थे जिन्होंने या जिन लोगों ने। उसके बाद फेल आया युमिनूना, तो ईमान लाते हैं। तो जो लोग ईमान लाते हैं, इसमें मौसूला जब भी आएगा उसके साथ अगर फेल आया तो फिर उसको मिला के तर्जुमा करेंगे। जो लोग ईमान लाते हैं। बीमा, उस पर जो माँ जो है, ये भी एक इसमें मौसूला है। अल्लज़ीना जैसा इसमें मौसूला है, वैसा माँ भी इसमें मौसूला है। माँ, इसके मायने है जो। उनजिला, उनजिला क्या है? इसम है, फेल है कि हर्फ है? फेल है। फेल है। माजी है, मुजारे है, अम्र है, नाहिया है? क्या है? माजी है। माजी है। सुलासी मुजर्रद है कि मजीद फी है? मजीद फी है। सुलासी मजीद फी है। मजीद फी है। उसके बाद देखो, सही है कि गैर सही है? सही है। सही है। सही नहीं है। हमजा बाब इफाल का है वो, इसका मादा है नून, जा और लाम। तो ये सही है। मालूम है कि मजहूल है? मजहूल है। मजहूल है। ऐसा पहचाने। मजहूल की पहचान क्या है? फुइला वाला है। हाँ, फुइला। अनजला से बना उनजिला। अब मायने बोलिए। उसने बोले थे अस्सलाम वालेकुम। नाजिल किया गया। हाँ। नाजिल किया गया। हाँ, जो कुछ नाजिल किया गया। माँ के साथ पढ़ेंगे तो जो कुछ नाजिल किया गया। इलाइका, इलाइका क्या है? इसम है, फेल है कि हर्फ है? हर्फ है। हाँ, इला हर्फ है, और का क्या है? मुत्तसिल ज़मीर है, इसमें मजरूर। इला जो है वो हर्फ जर है। हर्फ जर है और आमिल है, अपने बाद आने वाले इसम को हालत जर में लेके जाता। तो ये का यानी के अंता है असल में, मुनफसिल ज़मीर। तो इला की वजह से मुत्तसिल हो गया, हालत जर में चलेगा, का बन गया। अंता से बना का। इलाइका, इलाइका यानी कि
आपकी तरफ آپ کی طرف. آپ کی طرف. تو والذین یؤمنون بما انزل الیکا، میں نے بولیے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا. اس کے بعد پھر سے آیا وما انزل، اور جو واو صفات ہے، اس کے معنی اور ہے. پھر سے ما موصولہ آیا، جو کچھ انزلہ سیم فعل ہے، نازل کیا گیا. من قبل کا، آپ سے من کیا ہے؟ مجرور حرف جر ہے من حرف جر ہے، وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے کے جاتا، تو من قبلی ہو گیا. اب کا کیا ہے؟ اسم موصولہ کا اسم ہے، متصل ضمیر ہے جو قبل کے ساتھ لگ کے آئی. تو یہ تو سب ملا کے ہو جائے گا من قبلی کا، یعنی کہ معنی بولو آپ سے پہلے. آپ سے پہلے آپ سے پہلے، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے. وبالآخرتی، واو حرف عطف حرف عطف ہے، بالآخرتی یعنی کہ آخرت. ہم وہ سب مذکر ضمیر ہے اور منفصل ضمیر ہے. یوقنون فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے. فعل ہے فعل ہے، کون سا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے کہ مزید بھی ہے؟ مزید بھی مزید بھی ہے. اور صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے؟ غیر صحیح ہے غیر صحیح ہے. غیر صحیح کی کون سی مثال ہے یہ؟ مثالی سے مثال ہے. معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معلوم ہے. اور یہ ہے فعل مضارع. تو یہ کون سے باب سے آ رہا؟ اسلم یسلم، باب افعال سے، فارم 4 سے آ رہا ہے. یوقنون معنی بولو. وہ سب یقین رکھتے ہیں. یقین رکھتے ہیں. وہ سب یقین رکھتے ہیں. اب کوئی ایک ایقنا، ایقنا یوقنو، ایقنا ایسا تو الف یا قاف نون. نہیں، الف نہیں، ہاں ہے. یہ اس کا مادہ ہے یا قاف اور نون. ہم اردو میں بولتے ہیں نا یقین، ویسے وہ یقین. نہیں ایخانہ کیا ہے کیسا؟ ہاں، یہ یا قاف اور نون اس کا مادہ ہے. تو یہ یا جو ہے یہ حرف علت ہے، اور یہ آ گئی فا کلمے پہ. تو فا کلمے پہ آنے کے بعد یہ بن جاتا مثال، اور مثال یائی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مثال یائی. تو یہ ثلاثی مجرد میں جب رہے گا تو 3 حرف کے ساتھ رہے گا. جب یہ مزید فی کے اندر جاتا تو مثال کے طور پہ یہاں پہ گیا باب افعال کے اندر، تو باب افعال کے اندر سب سے پہلے جو ایڈ ہوتا وہ حمزۃ القطع زبر کے ساتھ. پھر اس کے بعد فا کلمے پہ جزم آتا، پھر یہاں پر زبر اور یہاں پر بھی زبر. تو یہ بن گیا ایقنا، ایقنا. اور اس کا مضارع یوقنو. اچھا، یہ یا سے واو کیوں بدلا؟ ہاں، یہاں پہ اس سے پہلے کیا تھا؟ پیش تھا. تو مطابقت کا قانون لگا. اس سے پہلے پیش ہے تو وہ یا واو کے اندر بدل گئی، تو وہ بن گیا یوقنو. اور یوقنو سے بنا یوقنون جمع. اب آپ میں سے کوئی ایک پوری آیت کا ترجمہ بہترین انداز میں کریے. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر، اور جو کچھ نازل کیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. جی ماشاءاللہ، بہترین. اس میں کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیے. سر موصولہ کے بارے میں بولیے. اس میں موصولہ پیر کے دن پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. اس میں موصولہ یعنی کہ ایسا اسم جو جیسا واو حرف عطف بولتے 2 جملوں کو آپس میں جوڑتا، 2 اسموں کو آپس میں جوڑتا، ویسا ہی اس میں موصولہ بہت کام کی چیز ہے. یہ بھی 2 جملوں کو آپس میں جوڑتا.
जी सर। किसी की तारीफ बयान करने के लिए भी इसमें मौसूला का इस्तेमाल होता है। जी सर। इसमें मौसूला अलग अलग है, कुरान में भी इस्तेमाल हुआ। अल्लज़ी, अल्लज़ीना, मुज़क्कर के लिए अलग है, मुअन्नस के लिए अलग है। और जब मुज़क्कर और मुअन्नस की कोई बंदिश नहीं आती तो वहां पे माँ का इस्तेमाल होता है। तो माँ के अंदर, आप पीर के दिन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, माँ के अंदर तमाम इसमें मौसूला छुपे वाले हैं। अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती और अल्लाह, अल्लाई, ये तमाम इसमें मौसूला माँ के अंदर छुपे हुए हैं। ये सबका निचोड़ है माँ। तो माँ के मायने है जो या जो कुछ, ठीक है। लिल्लाही मा फिस समावाती, अब यहाँ पे कोई मुज़क्कर और मुअन्नस की बंदिश नहीं है, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीनों में है और जो कुछ उसके दरमियान में है। तो माँ जो है तमाम इसमें मौसूला की माँ है। ये माँ तमाम इसमें मौसूला, अस्माए मौसूला की माँ है। वो सब उसमें मौसूला उसके अंदर समा जाते हैं। मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया, जमा सब उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये आयत हमने पढ़े, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। और वो लोग जो ईमान लाते हैं बिमा उनज़िला इलैका, जो कुछ नाजिल किया गया आप पर, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो कुछ नाजिल किया गया आपसे पहले या जो कुछ उतारा गया आपसे पहले, व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो सब यकीन रखते हैं आखिरत पर। ये हो गया इसका तर्जुमा, उसका तजवीद देख लिए, ग्रामर भी देख लिए, ठीक है। किसी को और कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान जो है वो एक किताब भी है, अल्लाह का कलाम है और किताब भी है। अगर किताब को हम कलम से अगर लिखेंगे तो ये क्या होता? किताबुन या फिर अल किताबु, किताबुन या अल किताबु। अभी ये बताओ, ये इस्म है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? इस्म ही है, अल किताबु इस्म है ना, अल्लाह का कलाम है और एक किताब भी है। तो किताब है तो जब हम उसको लिखेंगे पेपर पे, कुछ हरूफ मिला के जब उसको लिखेंगे, उसकी शक्ल बनाएंगे यहाँ पे बोर्ड पे या पेपर पे, तो ये मुज़क्कर इस्म हो रहा कि मुअन्नस इस्म हो रहा? मुज़क्कर हो रहा, क्योंकि मुअन्नस की कोई निशानी नहीं है इस पे, ना ता मरबूता है, ना अलिफ मकसूरा है, ना ही अलिफ ममदूदा है। तो ये हो गया मुज़क्कर इस्म। मुज़क्कर इस्म के लिए इसमें मौसूला जो इस्तेमाल होता वो होता अल्लज़ी। जिस यहाँ पे अल्लज़ीना आया और ये युक़िनूना आया, तो ये जमा मुज़क्कर का सीगा है, तो उसने अल्लज़ीना आया। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में है ना, अल्लज़ीना आया, यहाँ पे युमिनूना आया। अल किताबों के लिए अगर इसमें मौसूला इस्तेमाल होना तो वो अल्लज़ी होना। बात समझ में आ रही? यहाँ पर माँ इस्तेमाल हुआ, क्यों? अल्लाह ताला ने तो किताब नाजिल की आप पर भी और आपसे पहले भी। बेजान चीज के लिए, जानदार के लिए कल बताया था आपने। अल्लाह का कलाम है। पढ़िए, आप तो आयत को पढ़िए, समझिए। क्या सवाल बोले सर? दोहराइए सवाल। अल किताबु इस्म है। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया पर किताब नाजिल की, शरीयत नाजिल की, ठीक है। तो किताब मुज़क्कर इस्म है, उसके लिए इसमें मौसूला आना था अल्लज़ी, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ माँ। तो ईमान लाना है तो सिर्फ किताब पर लाना है या क्या है वो? आप देखिए, अल्लज़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पर माँ का इस्तेमाल हुआ। मतलब किताब के साथ उस ईमान, जो कुछ नाजिल किया गया आप पर, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल हुआ, किताब,
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اقوال افعال ہم تک پہنچائے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. شریعت نئی کتاب دی. ہاں شریعت اور سنت دونوں چیزیں لینا ہے, دونوں چیزیں آ گئی اس کے اندر. اس سے پہلے جو صحیفے ہیں وہ بھی اور اس سے پہلے بھی جو ہے ان تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو تمام باتوں پہ بھی عمل کرنا ہے. جی سر. جی اور کوئی سوال ہے کسی کو گرامر کے تعلق سے تو پوچھیے. دو اہم ٹاپک ہیں. جی اور ابھی یہ ہم کانا جو پڑھ رہے آج جو شروعات ہوئی کانا قالا کے بعد کانا سب سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوا اور اس کے بعد بھی استعمال ہوا الذین. تو کانا اور الذین اس میں موصولہ اور کانا یہ دونوں بھی پڑھنا ضروری ہے. جب یہ دو آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ آپ کے پورے گرامر میں 4 چاند لگ جائیں گے. تو یہ 2 اہم ٹاپک تھے جس کی آج شروعات ہو گئی. انشاءاللہ ابھی پیر کے دن اس میں موصولہ بھی ہم پڑھیں گے. سر آپ بھی دعا کریے ہمارے لیے کہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے, ہمیشہ یاد رہے. جی جی اللہ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے قرآن کو سمجھنے کی آمین. اور اس پر عمل کرنے کی. آمین. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگلی بیچ میں آپ پھر سے کیجیے. رمضان کے بعد بھی جو بیچ رہے گی آپ اس میں بھی جوائن کیجئے. اور تمام ویڈیوز اویلیبل ہے. یہ ویڈیوز بھی رمضان میں روز ایک بھی اگر دیکھ لیے تو آپ کا ریویژن بھی ہوتے رہے گا. اور رمضان ایک بہت مبارک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا, جس میں قرآن نازل ہوا. تو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ پڑھتے بھی تلاوت بھی کرتے تو آپ کے سامنے بہت سارے الفاظ بھی آتے چلیں گے. اس کا معنی دیکھیے, اس کو نوٹ ڈاؤن کریے, پینسل لے کے بیٹھیے جب بھی آپ قرآن پڑھ رہے تو نیا لفظ آیا کوئی بھی تو اس کو ٹک کیجیے, اس کے معنی دیکھیے. پر دیکھتے ایگزیکٹ نہیں نکل پاتا معنی. ڈکشنری کا استعمال کرنا پڑتا اس کے لیے. شروعات میں پہلی مرتبہ جب ہم پڑھتے تو ڈکشنری کا استعمال کرنا پڑتا. بس ہم کو گرامر اگر پکا آ گیا, جو بنیادی گرامر سمجھنے کے لیے جو ہے وہ اگر ہم نے پکا کر لیے تو معنی آپ کو بعد میں انشاءاللہ خود بخود آ جاتے. پڑھتے پڑھتے مطالعے سے وہ تمام چیزیں اور ورڈ ٹو ورڈ معنی والے ہیں نا اور کتابیں. بہت سارے ورڈ ٹو ورڈ میننگ والے کتابیں ہیں موجود ہے. ابھی تو موبائل پہ اپلیکیشنز اتنے آگے والے ہیں ورڈ ٹو ورڈ میننگ والے. جی سر. جی سر یہ آپ جو آیت کا یہ گرامیٹیکل کرا تو بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے, اس سے بہت زیادہ کلیئرٹی آ جاتی ہے. جی الحمدللہ. آپ بھی اسی طریقے سے جب بھی ہم قرآن پڑھتے تو اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کیجیے. جی سر کرتے ہیں لیکن صحیح نہیں پتہ نہیں تھا. اور آ جاتا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. جب اللہ تعالیٰ نے بول دیا تو میں اور آپ کیا چیز ہے. بس اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو محنتیں کی ہے اس کو آسان طریقے سے پڑھانے کی, آسان طریقے سے لوگوں کو سمجھ میں آئے وہ بتانے کی جو کوششیں کی, اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے. آمین. اور بالخصوص اس کے اندر ہمارے سر کی جو محنت ہے وہ بہت زیادہ محنت ہے. اللہ سر کی محنت کو قبول کر لے. سر کی محنت تو بہت تھی سر, قبول فرمائے بہت اللہ تعالیٰ. محنت کرتے سر. جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. آمین. تو رکیں گے آج یہاں پر. سر سبحان اللہ و جی رمضان کے بعد اور کلاسز کب سے چالو ہوئیں گے سر؟ رمضان کے بعد انشاءاللہ جو ڈیٹ ہم طے کریں گے وہ گروپ میں ڈال دیں گے انشاءاللہ. اس کا ایک ایڈورٹائزمنٹ بنا کے بھی ڈالیں گے پامپلیٹ وغیرہ. ایک اندازہ 15 اپریل کو. 15 اپریل تک ایک اندازہ پکڑ کے چلیے. عید کے ایک 15 دن کے بعد کلاس اسٹارٹ ہو جائے گی. اور آپ لوگ بھی اس کلاس کی تیاری کیجئے, خاص طور پہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیے. جی جی اس پہ کام کیجیے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ گروپ بنائیے. آپ کے کیا کرنا, واٹس ایپ گروپ بنانا رشتے داروں کے, دوستوں کے, کوئی تو بھی اس کا گروپ لیڈر بننا ہے. ایسے ہر ایریا میں گروپ لیڈر بنانا.
व्हाट्सएप के ग्रुप बनाइए ताकि हमको उन तक ये मैसेज पहुंचे। तो होता क्या है, 100 लोग ज्वाइन करें तो 20 से 25 रह जाते। जी तो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जब लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, उतने ज्यादा लोगों को पढ़ा सकते हैं। जी सर। तो आप भी कोई नई हिकमत सोचिए, मुझे बताइए, आप भी जैसे देखिए, अभी आएगा अगर अभी कोई इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, अपना रिश्तेदार खड़ा या कारपोरेटर बोल आते और एक एक आदमी से वोट लेने की कोशिश करते, उसके घर को ले जाके पैसे पहुंचाते, ऑटो में जाते, उसको ऑटो में जाते, उसको उठा के ले जाते। मेरा क्या कहना है मालूम क्या, ये तो भाई कारपोरेटर बनने का है, यहाँ पे आखिरत का काम है। अगर ये जज्बा अगर इसमें हम लोगों ने रहे, वो तो 5 साल का है, ये लाइफ टाइम का है, इनफाइनेट के तौर पर, यानी कि लामहदूद हम लोग जो है अगर ये काम करेंगे, कुरान की खिदमत करेंगे, तो आपको बहुत इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, जैसा आप पढ़ाते कोई नहीं पढ़ाता। अब सब आदमी ग्रामर थोड़ी जानता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। तो ये पढ़ लेता है, कैसे पढ़ा अगले जाता आने है? वाले रमजान के बाद जो बैच स्टार्ट होंगी उसकी दावत देना अभी से शुरुआत कर दीजिए। जैसा सर ने बताया कि एक कॉर्पोरेटर 5 साल के लिए रहता लेकिन मेहनत करता, और वो भी दुनियावी है। और ये जो है हमारा जीवन बीमा है, LIC है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।